Hello students. Uh, Previously I was going to start with chapter number 1 of chemistry, but some of the students are having doubts in the in-text questions of chapter 12. So first I am going to address those doubts. So in today's lecture I am going to address doubts of chapter number 12, and from the next lecture we are going to start with chemistry. ठीक है, आज के लेक्चर में वो डाउट्स एड्रेस करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से हम वो केमिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट करेंगे. क्लियर? सो यू हैव टू ओपन पेज नंबर 213 ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. ठीक है, मैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जितने हैं वो सब करा देता हूं. सो ऑन पेज नंबर 213 in text question 1. Okay, today we are going to solve in text questions of chapter 12, which I gave you in homework, but some of the students are having doubt. So page number 213, question number 1. Draw a schematic diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each. Draw a schematic diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each. Then a 5 ohm resistor, an 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug key all connected in series. तो देखो 3 cells, so first cell, second cell, third cell. बैटरी क्या होती है? बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. तो ये क्या है? 3 cells हैं, तो ये क्या हो गई? बैटरी हो गई. Now each cell is of potential 2 volt, तो 2, 2 and 2. So this battery is of potential 6 volt. 3 cells of 2 volt potential, उनको कनेक्ट किया तो कितने की बैटरी हो गई? 6 volt की बैटरी हो गई. A 5 ohm resistor, an 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug key all connected in series. There are 3 resistors. First, second, third and a plug key all connected in series. Resistors आपको वैल्यू क्या दी है? 5, 8 and 12. So this is of 5 ohm, this is of 8 ohm and this is of 12 ohm. So this is the answer of your first question. Show the direction of current over here. Current flows from positive terminal towards the नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. तो जितनी चीजें आपको क्वेश्चन में बोली है सब आपने शो कर दी है. तो सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. सेकंड, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1. फिर से ड्रॉ करना है. पुटिंग इन एन एमीटर. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है. ये आप ड्रॉ कर लो फर्स्ट में. ठीक है, पॉज करके फर्स्ट में यह पार्ट ड्रॉ कर लो. ओके, वो ड्रॉ करने के बाद क्वेश्चन 2 में You have to redraw this circuit. ये सर्किट को आपको फिर से ड्रॉ करना है. Putting in an ammeter to measure the current through the resistors and a voltmeter to measure the potential difference across the 12 ohm resistor. एक ammeter लगाना है सर्किट पे. ammeter सीरीज में कनेक्ट होता है. And a voltmeter to measure the potential difference across 12 ohm. 12 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है वो मेजर करने के लिए आपको एक वोल्ट मीटर लगाना है. बस इतना इतने चेंजेस होंगे सेकंड क्वेश्चन में. ठीक है, यू हैव टू रीड्रॉ द सर्किट व्हिच यू ड्रू इन क्वेश्चन नंबर 1. नाउ इन क्वेश्चन 2 व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अटैच एन एमीटर एंड अ वोल्टमीटर अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस ओवर हियर. ठीक है, अब आगे क्या बोला है? What would be the readings in the ammeter and the voltmeter? वोल्टमीटर में कितनी रीडिंग होगी और एमीटर में कितनी रीडिंग होगी वो निकालना है. ठीक है, तो चलो सबसे पहले सीरीज का फर्स्ट फॉर्मूला. करंट निकालने के लिए आपके पास सर्किट का क्या होना चाहिए? टोटल रेजिस्टेंस होना चाहिए. बिकॉज I is V by R. सपोज यहां से I जितना करंट फ्लो हो रहा है तो एमीटर से भी कितना करंट फ्लो होगा? I. हमें एमीटर की रीडिंग ढूंढनी है.
तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, I ढूंढना पड़ेगा. And for finding I, what we need total resistance of this circuit. So equivalent resistance of above circuit R equals to, equivalent resistance of above circuit R equals to, let this be R1, R2 and this be R3. So R1 plus R2 plus R3. Now what is R1? 5 ohm. What is R2? 8 ohm. What is R3? 12 ohm. तो आपके पास आंसर कितना आ गया? 25 ओम. कितना रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का? 25. I is V by R. What is voltage? 6. And what is resistance? 25. 0.24. आप डिवाइड करोगे 6 by 25, so 0.2 is 50 and 4 is 100. 0.24 एम्पियर. तो एमीटर में कितनी रीडिंग आएगी? 0.24 एम्पियर. Therefore, reading in ammeter will be 0.24 ampere. We got one answer. Next we have to find the reading in this voltmeter. अब ये वोल्टमीटर कहां पे कनेक्टेड है? 12 ओम के अक्रॉस कनेक्टेड है. तो 12 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है? उसके लिए फॉर्मूला क्या था हमारा? Vn equals to I into Rn. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर. तो Vn कौन से नंबर का रेजिस्टर है? थर्ड नंबर का. तो यहां पे हमें रीडिंग कितने मिलेगी? V3. अभी तो सिंबल तो V है. तो V3 कितना होगा? I इंटू R3. करंट कितना है? 0.24 इंटू व्हाट इज R3? 12. ओके. सीरीज में वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर इज करंट इंटू रेजिस्टेंस. करंट कितना पास हो रहा है वहां से? 0.24 एम्पियर. और रेजिस्टेंस कितना है वहां का? 12. सो 12 4 is 48, 4 carry 24 and 4 28. So 2.88 volt. So reading in voltmeter will be how much? 2.88 volt. So this is the readings in ammeter and voltmeter. So this is the answer of question number 2 of index question given on page number 213. ठीक है. So first of all write this question. Pause the video here and write this. Then we will shift to page number 216. After writing this, open page number 216 in text question 1. In text question 1, page number 216. Now what is given? Judge the equivalent resistance when the following are connected in parallel. First, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है जब ये पैरेलल में कनेक्टेड है. तो इसमें दो पार्ट्स हैं. ए पार्ट इज 1 ohm and 10 raised to 6 ohm. 1 ohm and 10 raised to 6 ohm. ठीक है. So equivalent resistance 1 by R will be 1 by R1 plus 1 by R2. Now what is R1? 1. What is R2? 10 raised to 6. Okay.
1 और 10⁶ का एलसीएम क्या होगा? 10⁶ होगा। 10⁶ into 1, 10⁶ plus 1. Okay, this is 1 by r. तो r कितना हो गया? 10⁶ ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल करोगे आप 1 by r ये है, तो r क्या होगा? 10⁶ अपॉन 10⁶ plus 1 ओम। इसको अगर आपको नंबर्स में लिखना है तो लिख सकते हो। 10⁶ मतलब 10 लाख, and 10 lakh plus 1 is 10 lakh 1. ओके, ये हो गया आपका आंसर। बट आप यहां पे अगर छोड़ देते हो सम को तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। सेकेंड पार्ट आपको क्या दिया है? 1 ohm, 10⁻³ ohm and 10⁻6 ohm. B 1 ohm, 10⁻³ ohm and 10⁻6 ohm. So 1 by R will be 1 by R1, 1 by R2 and 1 by R3. ठीक है, पैरेलल का फॉर्मूला लगा दिया हमने। Now what we will do? 1 by R1 is 1, R2 is 10⁻³ and R3 is 10⁻6. LCM of these three numbers will be 10⁻6. 10⁻6 by 1, 10⁻6. 10⁻6 by 10⁻3, 10⁻3. 10⁻6 by 10⁻6, 1. ठीक है, ये आपका आया 1 by r। तो r क्या हो गया? 10⁻6 अपॉन 10⁻6 प्लस 10⁻3 प्लस 1। इसको सॉल्व करना तो आप कर सकते हो। 10 लाख 10,00,000 प्लस 1000 प्लस 1, 10 लाख प्लस 1000 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? 10 लाख डिवाइडेड बाय 1,001,001। ओके, 3361, करेक्ट। दिस विल बी योर आंसर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओम। इसको डिवाइड करने मत बैठ जाना, ठीक है, इतना फालतू टाइम नहीं है कि अब इसको डिवाइड करने बैठोगे। क्लियर? दिस विल बी क्लोज टू 0.99 समथिंग, ठीक है, क्लोज टू 1, क्योंकि नंबर्स एक्चुअली सेम ही है लगभग। सो पॉज द वीडियो हियर एंड राइट दिस, ठीक है। सिर्फ पैरेलल का फॉर्मूला यूज करना है आपको। Okay, I hope everyone has written this. So next question number 2 on the same page. Question number 2. An electric lamp of 100 ohm resistance, एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, ठीक है। A toaster of resistance 50 ohm and a water filter of resistance 500 ohm. वाटर फिल्टर का रेजिस्टेंस कितना है? 500 ohm. They are connected in parallel to a 220 volt source. Clear? अब क्वेश्चन इज थोड़ा ट्विस्टेड है, इसको समझना थोड़ा टफ है। क्या लिखा है आगे? What is the resistance of an electric iron? ये क्या था? लैंप था। ये क्या है? आपका टोस्टर है। And this is a filter. Now you have to find resistance of electric iron. एक चौथा ही अप्लायंस है।
पर कंडीशन क्या बोली है, विच इज कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, मतलब वो 220 वोल्ट सोर्स पे ही कनेक्टेड है, बट इट टेक्स सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल द 3 अप्लायंसेस। मतलब ये 3 अप्लायंसेस पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसमें कितना करंट जा रहा होगा, I1, इसमें जा रहा होगा I2, इसमें जा रहा होगा I3, टोटल मिला के कितना जा रहा होगा I। ओके, ये तीनों रेजिस्टर्स मिलकर कितना करंट कंज्यूम कर रहे हैं, I। तो आपको पूछा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। वो इससे ही कनेक्टेड है, इतने ही सोर्स से, ठीक है। That takes as much current as all the 3 appliances and what is the current through it। आपको वोल्टेज दिया है 220, आपको ये तीनों रेजिस्टर्स दिए, क्लियर। आपको बोला है कि इलेक्ट्रिक आयन को भी 220 वोल्ट सोर्स मिल रहा है, तो और इतना करंट ले रही, मतलब ये सर्किट नहीं है, सेम सर्किट में नहीं, यहां पे आप इलेक्ट्रिक आयन नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक आयन लगाते हो तो यहाँ पे 220 वोल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट कैसे कनेक्ट हो जाएंगे, फिर सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। बात समझ आ रही है, ये सेम सर्किट में लगाने को नहीं बोला है आपको। अगर आप यहीं पे इलेक्ट्रिक आयन लगा दो आगे और सोचो कि इसमें जितना करंट फ्लो हो रहा है, हमें तो इन तीनों में जितना करंट फ्लो हो रहा था उतना ही करंट हमें इलेक्ट्रिक आयन से फ्लो करवाना है। बट अगर आप उसी सर्किट में ही लगा दोगे तो अगर इसको 220 वोल्ट मिल रहा है पूरा, तो इसको थोड़ा कम मिलेगा, इसको कम मिलेगा, क्योंकि पोटेंशियल तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। आप 220 वोल्ट सोर्स की बैटरी लगाओ, इसमें 220 ले जाए तो इसको तो वोल्टेज ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका रिजल्टेंट सीरीज में होंगे, क्लियर। तो ये क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, कोई सर्किट बनाना नहीं है इसमें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, इफ current passing through electric iron is equal to the sum of all these 3 currents, तो इलेक्ट्रिक आयन का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनके इक्विवेलेंट जितना, ठीक है। आपको पूछा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयन कनेक्टेड टू द सेम 220 वोल्ट सोर्स सच दैट It takes as much current as all the 3 appliances। जितना इन 3 appliances से करंट फ्लो हो रहा था उतना ही करंट उस इलेक्ट्रिक आयन से फ्लो हो। और ये होने के लिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए इलेक्ट्रिक आयन का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, जितना इन तीनों का इक्विवेलेंट है उतना। मतलब इस क्वेश्चन को इतना कंफ्यूज करके आपको पूछा क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रिक आयन का रेजिस्टेंस क्या होगा, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। सो लेट resistance of electric ion be R। इलेक्ट्रिक आयन से इन तीनों में जितना करंट फ्लो हो रहा था उतना करंट फ्लो करवाने के लिए इलेक्ट्रिक आयन का रेजिस्टेंस जो R है वो इनके इक्विवेलेंट होना चाहिए। इक्विवेलेंट मतलब ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हमें यार निकालना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। 1/R इक्वल्स टू 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। LCM of these 3 numbers will be 500। 500 by 100 5, 500 by 50 10, 500 by 500 1। So 16 by 500, ये आ गया 1/R। So R कितना आ गया, 500 by 16। ओके, 4 4s are 4 1s are 4, 2s are 8, 5s are 20। 125 by 4 means 31.25 ohm, ठीक है। 31.25 मतलब 62.5, तो 125 करेक्ट है। R कितना आ गया, 31.25। तो आयन का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 31.25। करंट भी फाइंड करना है, सो I क्या होता है, V/R।
कितने वोल्टेज से कनेक्टेड आया है 220। रेजिस्टेंस कितना आया 31.25, लेने की जगह 125/4 भी ले सकते हैं। ओके, इन प्लेस ऑफ कंसिडरिंग दिस डेसिमल वैल्यू कंसिडर दिस फ्रैक्शन वैल्यू, जिससे आपके कैलकुलेशंस क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। सो 125/4 में 4 कहां चला जाएगा, ऊपर। कट कर दो 5, 25 था, 5 4 जा 20, 4 जा 20, 44 जा। ओके, 44 into 4, 4 4 जा 6, 1 carry, 176/25। ठीक है, 176/25, 25 6 जा 150, 7 जा 175, कितना बचा 1, 0 लिया नहीं जाएगा तो 0 और 4। करंट कितना आ गया 7.04 एम्पियर। क्लियर। सो आपको इस क्वेश्चन में ये करना था। तो क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड है, इसका सॉल्यूशन एकदम सिंपल है। पॉज द वीडियो एंड राइट दिस। Now question number, we are solving only numericals. So now question number 4. How can 3 resistors of 2 ohm, आपके पास कौन कौन सी वैल्यू के रेजिस्टर्स हैं, 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm, total resistance of 4 ohm। तो इसमें से आपको कनेक्शन बताना है। तो 4 ओम के लिए अगर आप 6 और 3 को पैरेलल में कनेक्ट करते हो, 1/3 + 1/6 मतलब 3/6 मतलब 6/3 2 2 2 4। ओके, तो क्या होगा, आपको 4 ओम चाहिए, तो 4 ओम के लिए क्या करेंगे, वी आर कनेक्टिंग, या आपको थोड़ा लॉजिक लगा के ही देखना है कि हम किसको कनेक्ट करें और कैसे कनेक्ट करें जिससे आ जाए इक्विवेलेंट। तो अगर आप 2 और 6 को करते, 2 और 6 को अगर आप पैरेलल में करते तो अलग आंसर आता। 3 और 6 को अगर हम करेंगे तो आंसर आएगा 2, और फिर उसके साथ एक 2 ओम का तो है ही हमारे पास, उसको अगर हम सीरीज में लगा दें तो देखो इन दोनों का इक्विवेलेंट सपोज r डैश है, सो 1/r डैश कितना होगा, 1/3 + 1/6, 3/6, r डैश कितना हो गया 2 हो गया। मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ these two resistors is 2 ohm। तो इन दोनों की प्लेस पे 2 ओम का आप सब इमेजिन कर लो, तो वो 2 और ये 2 कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। So that 2 and this 2 will add up to 4. So equivalent resistance of this combination is 4 ohm। ये लिखने की जरूरत नहीं है, no need to write this part। सिर्फ आपको इस सर्किट ड्रॉ करना है, बैटरी भी दिखाने की जरूरत नहीं होती है इस टाइप के क्वेश्चन में। सेकंड आपको चाहिए 1 ओम, तो 1 ओम तो सिंपल है, कनेक्ट ऑल द 3 रेजिस्टर्स इन पैरेलल। 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm। क्लियर। सो आप देखोगे 1/2 + 1/3 + 1/6 1/r, 2 3 और 6 का एलसीएम 6, 6/2 3, 6/3 2, 6/6 1, 6/6 आंसर 1। 1/r इज 1, तो r भी कितना होगा 1 हो। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। 4 ओम के लिए इस टाइप से कनेक्ट होंगे ये तीन, हमारे पास यही 3 रेजिस्टर्स थे, और 1 ओम के लिए तीनों पैरेलल में। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सर्किट ड्रॉ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। पॉज द वीडियो एंड राइट दिस।
Question number 5. What is the highest and the lowest total resistance that can be secured by combination of 4 coils of resistance 4, 8, 12, 24? अब 4 रेजिस्टर्स हैं, चारों से हाईएस्ट कब मिलेगा? जब आप उनको सीरीज में कनेक्ट करोगे। किस में कनेक्ट करोगे? सीरीज में। तो जब भी आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस बोला हो, आपको मान लेना है कि चारों हाईएस्ट रेजिस्टेंस कब देंगे? व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो पहले का आंसर है आपको सीरीज में कनेक्ट करके इक्विवेलेंट फाइंड करना है, सर्किट ड्रॉ नहीं करना है, बट सीरीज का फॉर्मूला लगाना है। सो फॉर हाईएस्ट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। Now R1, R2, R3, R4, 4, 8, 12, 24, 4, 8, 12 and 24, 8, 4, 12, 12, 24 and 24, 48 ohm. Okay, this is highest resistance that can be obtained by using these 4 resistors. Lowest के लिए, highest के लिए सीरीज और lowest के लिए चारों को पैरेलल। So 1 by R equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by R4. So 1 by 4 plus 1 by 8 plus 1 by 12. इन चारों का LCM क्या होगा? 24 होगा। 24 by 4 6, 24 by 8 3, 24 by 12 2, 24 by 24 1, 6 3 9 2, 11 and 1 12, 12 by 24 1 by 2. So R कितना आ गया? 2 ohm. So lowest कितना रेजिस्टेंस मिलेगा? 2 और हाईएस्ट कितना मिलेगा? 48. Write this question. Okay. Next on page number 218, question number 2. Compute the heat generated by transferring 96,000 coulomb of charge. चार्ज कितना दिया है? 96,000 in 1 hour. टाइम कितना दिया है? 1 hour मतलब 3600 seconds through a potential difference of 50 volt. V कितना है? 50 volt. Okay. Now what is H? I square RT. H is I square RT. देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे ना तो बहुत लंबी मेथड भी कर सकते हैं कि पहले Q और T से I निकालें, ठीक है, फिर V और I से R निकालें और फिर T निकाल दें। T आपको दिया, T सब्स्टिट्यूट कर दें। इसके अलावा एक और मेथड है, जब आप जूल्स लॉ डिराइव करते हो तो W इक्वल्स टू क्या लिखते हो? V इंटू Q। क्या लिखते हैं हम? W इक्वल्स टू V इंटू Q। तो अब क्या करते हैं हम? Instead of using this formula, we will directly use this. H equals to V into Q. I square RT था, but BQ भी यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको मल्टीपल फॉर्मूले नहीं याद रखने हो तो मैं आपको बता दे रहा हूं क्या करो। अगर आपको मल्टीपल फॉर्मूले नहीं याद रखने हो तो क्या करना है? सिंपली पहले करंट निकाल लो। I क्या हो गया? Q बाय T। 96,000 बाय 3600, ठीक है। 36 2 जा 72, 3 जा तो 108 होता है, 2 जा 72, तो कितना बचा? 240। 36 7 6 42, 4 कैरी,
देखो इससे बहुत लेंदी कैलकुलेशंस होंगी, ये नहीं करते हैं, सिंपल है। आप क्या करो, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला कैसे आया था, V इक्वल्स टू W इक्वल्स टू VQ डिराइव करके आया था। तो यहां पे क्या कर दो, आई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, I इंटू आई इंटू आर इंटू टी, ये लिख सकते हैं, ऐसे स्प्रेड कर दो। तो I इंटू टी एक साथ ले लो और I इंटू आर एक साथ ले लो। I इंटू टी क्या होता है, Q होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, तो Q इक्वल्स टू आई टी, तो आई टी की प्लेस पे क्या आ जाएगा Q, आई आर की प्लेस पे क्या आ जाएगा V। तो ये सिंपल हो जाएगा, आपको ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेगी, आंसर सेम ही आएगा अलग अलग फाइंड करोगे तो, बट ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा। I इंटू टी Q होता है, I इंटू आर क्या होता है, V होता है, V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ। डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, 96,000 इंटू 50, 1 2 3 4, 6 5 30, 0 3 कैरी, 9 5 45 and 3 48 जूल। ठीक है, तो कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5, 48 इंटू 10 रेज टू 5 मतलब 4.8 इंटू 10 रेज टू 6 जूल। कितने प्लेसेस शिफ्ट किया डेसिमल, 1 2 3 4 5 6, सो 10 रेज टू 6। लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया, इसलिए पावर प्लस, सो दिस इज योर आंसर। नाउ थर्ड, an electric iron of resistance 20 ohm takes a current of 5 ampere. Calculate the heat developed in 30 seconds. So H equals to क्या होता है, I square RT. I is 5, R is 20 and T is 30. 5 square 25. 30 into 20 will be 600. 25 6 are 150. Again 2 zeros. Joule. This is your answer. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हो, नहीं करना हो तो आपकी मर्जी। ओके, सो राइट दीज टू क्वेश्चंस। Then open page number 220. टू 220 में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, थियरी है तो मैं डिस्कस कर रहा हूं। चलो, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड मतलब एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, पावर। एनर्जी मतलब वर्क, वर्क अपॉन टाइम मतलब क्या हो गया, पावर। एनर्जी एंड वर्क आर इंटर रिलेटेड, सो इन प्लेस ऑफ एनर्जी यू कैन कंसिडर वर्क। रेट एट विच वर्क इज डन, तो वर्क अपॉन टाइम क्या होता है, पावर। तो फर्स्ट का आंसर आपका क्या होगा, पावर होगा। सेकेंड, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन, determine the power of the motor and energy consumed in 2 hours। ठीक है, पहले पावर निकालनी है तो डायरेक्टली P इक्वल्स टू क्या होता है, VI 220 इंटू 5, 1100 वॉट। ठीक है, एनर्जी के लिए हमें पावर को किस में रखना है, किलोवाट में, सो 1.1 किलोवाट। Time is 2 hours. We have to find energy. Energy is power into time. Energy के टाइम पे पावर किलोवाट में और टाइम आवर्स में, तो वो तो है पावर 1.1 टाइम 2.2 किलोवाट आवर। जूल्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत बुक्स में जूल्स में दिया है, बट आप किलोवाट आवर में ही रखो। एक ही चीज याद रखो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर में। सो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड। I left one graph question
फ्रॉम एक्सरसाइज, तो वो भी अब सॉल्व ही कर लेते हैं. पॉज द वीडियो हियर एंड राइट दिस. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन 7 देखो. The values of current flowing in a given resistor for the corresponding values of potential difference V across the resistor are given below. आपको करंट दिया है और वोल्टेज दिया है, ठीक है. 1.6 करंट दिया है 0.5 1 2 3 4, 0.5 1 2 3 4. ओके, वोल्टेज है 1.6 3.4 6.7 10.2 13.2. अब आप देख रहे हो करंट डबल है, वोल्टेज डबल. हमें करंट डबल कब मिला? एग्जैक्ट वोल्टेज डबल होने पे नहीं मिला, उससे थोड़े ज्यादा पे मिला. तो जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे 0.5 का डबल तो 1 है, बट 1.6 का डबल क्या होता है 3.2. बट हमें करंट डबल कब मिला? 3.4 पे. तो ऐसा नहीं कि ओम्स लॉ फॉलो नहीं हुआ. ये क्यों होता है? क्योंकि लैब में जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो इंस्ट्रूमेंट एरर होती है, फिर आपकी मैनुअल एरर होती है. तो वो सब एरर्स की वजह से पॉइंट में वैल्यू थोड़ा इधर उधर हो सकता है. अब आपको इसी का ग्राफ प्लॉट करना है. तो V वर्सेस I ग्राफ. तो V और I आपको यहां पे लेना है. आपको ये पॉइंट्स को प्लॉट करना है. मतलब V आपने y एक्सिस लिया है और x आपने I अपने x एक्सिस लिया है. तो 0 0.5 1 2 या तो 1 2 3 4 5 ऐसे ले लो. अब 0.5 आपको पता है कहां आएगा, ऐसे यहां पे भी ले लो. 1 2 3 अप टू कहां तक लेना है आपको? 13 तक. अब ये वैल्यूज प्लॉट करो कि 0.5 पे कितना है? 1.6. ठीक है, फिर उससे एक लाइन बनाओ आप. तो आपको ग्राफ प्लॉट करना है. अब रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालनी है? तो आपको V और I को डिवाइड करके यहां पे R1 मिलेगा 1.6 बाय 0.5. 1.6 बाय 0.5 कितना हो जाएगा? 3.2. R2 V बाय I. R क्या होता है? V और I को डिवाइड करें तो 3.4. यहां पे 6.7 बाय 2. सो R3 आपको मिलेगा 3.35. 10.2 बाय 3 तो R4 आपको मिलेगा 3.4. R5 13.2 बाय 4. 3 are 12. 3.3. अभी आपको वैल्यूज मिली. अब आपको रेजिस्टेंस निकालना है. तो रेजिस्टेंस के लिए एवरेज वैल्यू लेते हैं. तो R क्या होगा? सबको ऐड करके सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. क्लियर? एवरेज वैल्यू आपको रेजिस्टेंस की कंसीडर करनी है. तो ये जितने भी रेजिस्टेंस हमने निकाले V बाय I करके निकाले. सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज हियर, डिवाइड बाय 5 कर दो, आपको एवरेज वैल्यू रेजिस्टेंस की मिल जाएगी. ग्राफ आपको इसके हिसाब से प्लॉट कर देना है. I को x एक्सिस पे और V को y एक्सिस पे. ठीक है, प्लॉटिंग तो आपको आती है. क्लियर? सो आई होप दिस क्वेश्चन विल बी कंप्लीटेड. क्लियर? सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस. अब कोई डाउट होना नहीं चाहिए चैप्टर में. सो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी स्टार्टिंग विथ केमिस्ट्री. ठीक है, थैंक यू.